Hi guys, how are you all? I hope you're all fit and fine and steady at your own home. Take care of yourself, take care of your health, and take care of your family. That is very, very important in this crucial time. So, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं You Can Sell Anything Part 3. Part 1, Part 2, I believe that you have definitely seen it. If you have not seen it, please see my videos, please watch it carefully. And please share your comments, your feedbacks, your thoughts so that I can grow it up to the next level. अलग लेवल तक लेके जाने के लिए मुझे बहुत हेल्प मिलता है आपके कमेंट्स के साथ. और यस, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई सब्सक्राइबर्स फॉर सपोर्टिंग मी unconditionally, and from the core of my heart I will always be with you, and your help, your subscription, your means motivation will definitely help me or support me to perform my best of have means what I have. So आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 1 एंड यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा. प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़ एंड येस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. इट विल हेल्प मी to make more videos for your benefit. As I already said that nothing is wrong, nothing is right, everything is different. I am just trying to articulate all my experiences that I have gained for last 19 to 20 years in the corporate life, especially sales and marketing profile, and especially in the insurance industry. I am just trying to put in front of you, आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, so that you guys can realize the truth. परसेप्शन से बाहर निकल के आप ट्रूथ में रियलाइजेशन करें और एक सेल्स प्रोफेशनल की तरीके से काम करें. सेल्स कोई ऐसा बुक नहीं है जो आप पढ़ के सीख लेंगे, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर का कोई ऐसा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का बुकलेट नहीं है कि आप यही क्वेश्चंस कस्टमर से फेस करेंगे और यही आंसर आप कस्टमर के सामने डालेंगे. इसलिए मैंने पहले वीडियो में जस्ट टू रिकैप, इफ आई मीन्स हैव टू रिकैप माय फर्स्ट वीडियो ऑफ यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 1, आई हैड डिस्कस्ड अबाउट 8 essential elements. These 8 essential elements are the preparation for the opportunity. ये तो आपने सुना होगा that opportunity always knocks the door. Depends how much you are prepared for the opportunity to grab and make it a well developed plan to develop your personal and professional life. सो अपॉर्चुनिटी आपके डोर में नॉक करता है. फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ सेल्स प्रोफेशन. पीपल हु आर रेडी टू गेट इन टू द सेल्स प्रोफेशन, people who are already in the sales profession, irrespective of organization, irrespective of the product range, irrespective of the platform, it may be offline, online, किसी भी तरीके से अगर आप सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये 8 essential element is very important. This 8 essential element will talk about your own brand. आप अपना ब्रांड कैसे बनाते हैं. जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट ये ऑर्गेनाइजेशंस के विजन मिशन, यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड. सो आप अपने ऊपर ब्रांड इक्विटी लेके चलते हैं. इसके लिए ये 8 एसेंशियल एलिमेंट्स, प्रिपरेशन फॉर द अपॉर्चुनिटी to have a maximum growth in the sales profession, these 8 essential elements are very, very important. So please watch my You Can Sell Anything Part 1 channel and ये video, and please share your feedbacks and thoughts, and please subscribe it. Next मैंने बात की थी pit stop. Pit stop is the concept of the activities or the rules and regulations that we should follow once I am totally prepared to get into the sales profession. Pit stop talks about more on rubber hit the road. जब आप on the road जाके काम करते हैं, activities करते हैं. On the road मेरा बोलने का मतलब है when we are in the practical mode of selling any product, right? Your personality, your communication, your presentation, your product knowledge, your market knowledge, your customer feedback knowledge, everything comes into the picture. Your way of talking, your way of gesture, posture, body language, everything will be covered in pit stop. Now I am talking about, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, नेगलेक्ट कर जाते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए
कुछ और करते हैं लेकिन ये काम नहीं करते. सो द थर्ड part that is most important, you can sell anything. Part 3, I will talk about speed. Speed stands for 5 letter and in 5 words को मैंने speed इसलिए नाम दिया है because speed is linked with your career growth. Speed is linked with your personal development. Speed is linked with your communication and behavior development. Don't worry about, guys, I am always there for you. As I already told, this all my work, all my videos in the Arunda Coach channel YouTube में जितने भी मैं videos बनाऊंगा, it's purely dedicated for you people. I will try my level best to make your life easy, irrespective of any profession you are in. So जितने भी आप देख रहे हैं part 1, part 2, part 3, I will make 20 volumes. I am going to release one by one 20 volumes of You Can Sell Anything. जहां पे मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन करके बताऊंगा. सो बी विद मी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स, प्लीज वॉच माय वीडियोस एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्पीड. सबसे पहले सर्विस एक्सीलेंस. आप एक प्रोडक्ट बेच के, हम क्या बोलते हैं कस्टमर को? किंग, राइट? किंग. कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज किंग. सो वंस यू हैव मीन्स गिवन द प्रोडक्ट टू योर किंग, it's the time for you to give services and offerings also to your king. King और God को हम services और offerings जितना ज़्यादा देंगे उतना ही हमारे और king के बीच में, और to be more precise, the sales profession and the customer और the client के बीच में एक बहुत trustworthy, beautiful rapport build होता है. ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है. मैंने बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल सेल्समैन को देखा है, आप यकीन नहीं करेंगे. मैंने ऐसे लोगों को ट्रेन किया है जो उम्मीद छोड़ चुके थे अपनी ज़िंदगी में. आई हैव जस्ट ट्रेन्ड इन दिस वे. यही कॉन्सेप्ट मैंने उनको बताया. मैंने कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं सिखाया उनको, कोई पिचिंग नहीं सिखाई, नथिंग. दे हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स. मैंने सिर्फ उनका माइंडसेट क्रिएट किया है. एंड आई एम ए वेरी बिग बिलीवर ऑफ मेकिंग और बिल्डिंग अ पॉजिटिव एंड ग्रोथ माइंडसेट, जो कि मेरे पहले पार्ट 1 से ही शुरू हो जाता है. सो सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान रखें. इस पार्ट 3 में सर्विस इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू हैव टू कीप अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद योर कस्टमर बेस. दैट मे बी ऑनलाइन, दैट मे बी ऑफलाइन, कुछ भी हो सकता है, राइट? आप अमेजोन से चीजें खरीदते हैं. अमेजोन से एक चीज खरीदने के बाद क्या अमेजोन आपको भूल जाता है? नहीं. अमेजोन आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स के बारे में मैसेज करता है, मेल्स आते हैं आपके पास, कुछ बहुत सारे कूपन्स दिए जाते हैं. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्विगी, देन जोमैटो, या फिर आप किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में कोई चीज़ खरीदते हैं. सिमिलरली आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं. आज के डेट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अपग्रेडेशंस आपके पास मिलते हैं. डिपेंड ये करता है कि कस्टमर क्या उन सब चीज को जानता है, नहीं जानता. किसकी ड्यूटी बनती है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर को उन सब के बारे में ज्ञान देना? हम जैसे लोगों के. वी आर ऑल सेल्स प्रोफेशनल्स. दैट्स व्हाई द फर्स्ट लेटर स्पीड, एस, स्टैंड्स फॉर सर्विस एक्सीलेंस. what service you are giving, what updates you are giving, what are the new things or new products that can change the customer's life और uplift the customer life. What are the new things? अच्छा, अब इस प्रोसेस में आप भी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, आप भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं. इस चीज को याद रखिए. वी विल गो इन मोर डिटेल्स. बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं सर्विस एक्सीलेंस के. आई विल शेयर यू इन दी डिटेल्ड वीडियो दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च वेरी सून. P, potential market. Everything is changing, situation is changing, atmosphere is changing, mindset is changing, psychology is changing. अगर आपके ये सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं आपके खुद के पर्सनल लाइफ में, सो डेफिनेटली कस्टमर कोई किसी और प्लैनेट का नहीं है कि वो अर्थ से बाहर जाके सोचेगा. वो भी आपकी तरह ही सोचता है. इसलिए मैंने अपने पार्ट 1 में बोला था कि हैव यू यूज द प्रोडक्ट. क्या आपने वो प्रोडक्ट यूज किया है जो आप बेचने जा रहे हैं? हैव यू टेकन द फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट दैट इफ एनीबडी एल्स इज यूजिंग? आपके आसपास कोई वो प्रोडक्ट यूज किया, आपके दोस्तों में, आपके फैमिली मेंबर्स में? देन ओनली यू कैन टॉक अबाउट मोर फ्रीली एंड मोर पर्सनली एंड मोर क्लोजली अबाउट दैट प्रोडक्ट विद योर
prospecting customers or your customers or your clients, to be more precise. Try to understand. I think means we are connecting in this. So market में potential क्या है, उस कंपनी की potential क्या है, आपका potential क्या है, कस्टमर्स के प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या है, आसपास उसके जैसे कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च हुआ है उसके बारे में अपडेट देना, ये सब एक सेल्स प्रोफेशनल की ही ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऐसे ही आप ग्रो करते हैं, आप प्रोडक्ट के हिसाब से ग्रो करते हैं. बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर मैं ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कैसे ग्रो करूं, मैं ज़िंदगी भर मैं थोड़ी सेल्समैन बन के काम करता रहूँगा, मैं मीन्स मैनेजरियल लेवल में कैसे ग्रो करता हूं. आप ये प्रोसेस फॉलो करिए, योर लाइफ विल बी ईजी. और अदरवाइज आई हैव शेयर्ड ऑल माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द रेस्पेक्टिव यूट्यूब वीडियोज़. आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं और मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. So S for service excellence, P for potential market. मार्केट में पोटेंशियल एक प्रोडक्ट का बहुत होता है. सोनी, फॉर एग्जाम्पल सोनी हैज अंडरस्टूड द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट. सोनी हैज अंडरस्टूड द टेस्ट ऑफ द मार्केट. सोनी हैज अंडरस्टूड द टेस्ट ऑफ द कस्टमर एज फॉर द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट. दैट्स वाई दे हैव ग्रोन, जो कि जेरोक्स जैसी कंपनी नहीं कर पाई, नोकिया जैसी कंपनी नहीं कर पाई, कोडैक जैसी कंपनी नहीं कर पाई. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आज की डेट में कोविड-19 कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने आज तक हैंड सैनिटाइजर जिंदगी में कभी मींस मैन्युफैक्चर नहीं किया, वो आज की डेट में हैंड सैनिटाइजर बेच रहे हैं, मास्क बेच रहे हैं. दे आर चेंजिंग. दैट इज दे शुड नो द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट. आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं थ्रू सम मार्केटिंग थिंग्स एंड दिस प्रमोशनल एक्टिविटीज, बट आपको भी उन प्रमोशनल एक्टिविटीज को समझना पड़ेगा. That is known as potential of the market. Similarly, if you know the potential of the market, then speed का E is educating self and educating client. Client को जाके बताइए, sir, this is the developments of this product. These are the usage of this product. These are the feedbacks being given about this product. These are the good feedbacks. These are the bad feedbacks. सारी चीजें आपको मनूवर करके आपको खुद अपने हिसाब से जैसे जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, दिस इज द कोर फ्रॉम माय हार्ट. आई एम टेलिंग यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग you should have to be a better salesman, you should love your profession. You should love the sales profession. इससे अच्छा प्रोफेशन इस दुनिया में नहीं है. Everybody is selling ideas, selling concept, selling product. Product may be intangible, tangible, whatever it may be. Online, offline, marketing activities, everything, whatever activities people are doing across the world, they are all selling. Even a college का एक प्रोफेसर भी सेल करता है. कॉलेज के उस प्रोफेसर के क्लास में तभी क्लास फुल होती है जब उसके लेक्चर्स लोगों को पसंद आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, दिमाग में बात घुसता है और बैठ जाता है, समझ अंडरस्टैंडिंग होता है, कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, नॉलेज ग्रो करता है. आपको भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. सेलिंग इज एवरीथिंग. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग. दिस इज द साइंस ऑफ सेलिंग. आई कैन टेल यू द साइंस ऑफ द सेलिंग. यू कैन बी द मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ सेलिंग. वंस यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ साइंस एंड आर्ट ऑफ द सेलिंग, you can become a magician in sales. Remember it. You have to educate yourself. Self-awareness सबसे important है. If you are not aware about yourself, you cannot make aware of your customers or clients. So you have to educate self and educate client. E stands for exchange knowledge. Definitely. Whenever you are educating ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया, उसको समझ में आया नहीं आया. Communication skills plays a very important role in this. How you are communicating, how you are talking to your customers. इससे क्या होता है? इसमें ट्रस्ट बिल्ड होता है. इस दुनिया में एक साइंस होता है, इस साइंस को कहते हैं साइंस ऑफ परसुएशन. आपको वही आदमी लाइक करेगा, द पर्सन विल लाइक यू इफ यू लाइक हिम. इट्स अ मीन्स वाइस वर्सा प्रोसेस. आप किसी आदमी के चीज को अनलाइक करेंगे या फिर पसंद नहीं करेंगे, वो आपको जिंदगी में कभी लाइक नहीं करेगा. बात करेगा आपसे, कॉन्टैक्टिबिलिटी रखेगा. डेफिनेटली फैमिली हमारी बहुत बड़ी होती है. हम लोग एज पर द इंडियन कल्चर वी आर जनरली फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर. सो फैमिली में एक दो लोग होते हैं जिनसे हम बहुत क्लोज होते हैं. क्यों?
because that person likes what I do, what I say, what I conduct. So definitely उसकी भी सारी चीज़ें मुझे पसंद होती हैं. That's how the relationship builds. So it is exchange of knowledge. Next is decision to change. आज कोविड-19 में चेंज इतना बड़ा एक एग्जाम्पल के रूप में आ रहा है. आपको भी चेंज होना है, आपके साथ साथ आपके अपने कस्टमर्स को भी चेंज होना है. चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज फॉर डेवलपमेंट. तो ये डिसाइड करवाना या फिर कस्टमर को हेल्प करना टू टेक अ गुड डिसीजन अबाउट द चेंज, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दिस स्टैंड्स फॉर स्पीड. Speed is the third part of You Can Sell Anything. Please like my channel. Please watch all the videos that I have shared with you. Share your thoughts, share your feedback. And yes, humble request to subscribe my channel. Take care of yourself. Stay healthy, stay connected. Jai Hind.